Hello student and welcome to presentation of UEE and this is unit 2 and the topic is heating and welding presented by Utkarsha Sonika, Department of Electrical Engineering. Now the learning outcome. After watching this video, student will be able to learn heating and welding, and the course outcome: maintain different electric heating and welding equipment. Now what is dielectric heating? In this heating दो मेटल प्लेट्स दिखे हैं, मेटल प्लेट्स ऊपर एंड नीचे में एक मेटल प्लेट्स है, उसमें मटेरियल टू बी हीटेड बीच में रखा जाता है। क्या करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव जो प्लेट्स अटैच्ड है उसमें अगर आप बीच में मटेरियल डाल रहे हैं और उसको सप्लाई दे रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो मेटल क्या होगा, हीट होगा। नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आल्सो समथिंग कॉल्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस हीटिंग. If non-metallic material, i.e. insulators such as wood, plastic, china, clay, glass, ceramics, etc. are subjected to high voltage AC current, their temperature increase in temperature is due to the convection of dielectric loss into heating. जो भी मटेरियल्स है जैसे वुड, प्लास्टिक से इतनी इजीली हीट नहीं होते, इनको अगर हीटिंग देनी है तो हमें क्या करना करता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग देना पड़ता है. द डाइलेक्ट्रिक लॉस इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड हाई वोल्टेज. जो भी वहां से हीट होगा, कन्वेक्शन होगा, जो भी लॉसेस होंगे जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉस. देयरफॉर फॉर ऑब्टेनिंग हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, हाई वोल्टेज एट हाई फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली एम्प्लॉयड. द मेटल टू बी हीटेड इज प्लेस्ड बिटवीन टू शीट्स टाइप इलेक्ट्रोड्स which forms the capacitor as shown in figure. The equivalent circuit and vector diagram is also shown in figure. जो भी फिगर में दिया है, दो मेटल्स के बीच हम क्या करते हैं, मटेरियल करते हैं, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं. When AC supply is connected across the two electrodes, the current drawn by the it is leading the voltage exactly 90 degree. जैसे ही आप AC सप्लाई दे रहे हो, वो दो इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे, हीट होना शुरू होंगे. The angle between voltage and current is slightly less than 90 degree. But at high frequency the losses becomes large which is sufficient to heat the dielectric. जब भी हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे तो लॉसेस कैसे होंगे, लार्ज होंगे और सफिशिएंट टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, मेटल हीट होना स्टार्ट होगा. Now what is the advantages of dielectric? Uniform heating is obtained, running cost is low, non-conducting material heated within a short period, easy heat control, and the application is for food processing, for wood processing, for drying purposing, textile industry. Now next is AD current heating. Now what is AD current heating? AD current heating also known as the induction heating. हमने induction heating पहले ही पढ़ा है. The material to be heated is placed inside the coil. अब coil के अंदर जो material है जो इसको हीट करना है वो रखते हैं. The heat is in the material to be heated is produced by AD currents. जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रहा है, एडी करंट की वजह से. पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट इज एडी करंट लॉस. जो भी लॉस हो रहा है पावर लॉस, वो कौन सा लॉस है, तो एडी करंट लॉस है एंड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट. जो भी एडी करंट है वो किस फॉर्म में हो रहा है, हीट. द मेटल टू बी हीटेड इज प्लेस्ड बिटवीन द हाई फ्रीक्वेंसी करंट कैरिंग कॉइल. जो भी कॉइल है वो कैसे हाई फ्रीक्वेंसी है. बाय डूइंग सो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप. Eddy current are induced in the metal piece and the heating is affected. The power loss due to eddy current is in the metal piece depend upon the power drawn by the metal piece. जो भी एडी करंट लॉस हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस एडी करंट में जो भी मटेरियल है वो क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है. Now advantages of eddy current heating: it is quick and clear. There is little wastage of heat as heat is produced in the body to be heated up directly. The heat can be made to penetrate into the metal surface to any desired depth. The equipment can be obtained even by unskilled worker. And the disadvantages of eddy current heating is it is costly method for the production of heat, low efficiency, and initial cost of apparatus is high. Now this is types of welding. Now अब हमने हीटिंग कंप्लीट किया, अब क्या है वेल्डिंग. तो सबसे पहले वेल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है, कितने टाइप्स के वेल्डिंग होते हैं, तो गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, नेवर वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग. लेकिन हमें इसमें से इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दैट इज बर्ड, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन. एंड द आर्क वेल्डिंग, दैट इज कार्बन आर्क, मेटल आर्क, प्लाज्मा आर्क, ग्लास मेटल आर्क, ग्लास टंगस्टन आर्क. ये वेल्डिंग हमें पढ़ना है.
अब क्वालिटी क्या होता है गोल्ड वेल्ड की, नो क्रैक्स और होल्स फाउंड इन द बेड। जो भी हम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, वेल्ड करते वक्त ना क्रैक होना चाहिए ना होल होना चाहिए। द बेड हैज यूनिफॉर्म वेव्स विड्थ एंड हाइट। द फिनिश्ड प्रोडक्ट satisfies the design dimensions and high among no distortion। जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर डायमेंशंस का होना चाहिए। द वेल्डिंग मेट्स द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को वेल्डिंग ने मेट होना चाहिए। फुल पेंटेशन वेल्ड्स द फ्यूज एंड जॉइन द एंटायर इंटरफेस बिटवीन द बेस मटेरियल एंड द वेल्ड जॉइन। जो भी मटेरियल ज्वाइन कर रहे हो प्रॉपर क्या होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए, बेस मटेरियल हो या ज्वाइन मटेरियल हो। अब इसमें है सबसे पहले रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ना है हमें। अब वेल्डिंग में हमें यहाँ दिख रहा है डायग्राम में दो जो मटेरियल है वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ वेल्ड कर रहे हैं तो सप्लाई भी दे रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर अटैच है सप्लाई को स्टेप डाउन करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड्स अटैच किए हैं। जो क्या होगा, सप्लाई जाएगा और इलेक्ट्रोड्स हीटअप होगा और ये जो दो मटेरियल यहाँ लगे हुए हैं वो क्या होंगे, वेल्ड होंगे। सो रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज अ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोसेस इन विच द हीट इज जनरेटेड इन द इंटरफेरेंस ऑफ द पार्ट टू बी जॉइन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे और दो मटेरियल क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे टू द पार्ट्स फॉर अ प्रीसियसली कंट्रोल्ड टाइम एंड अंडर अ प्रेशर। एक अंडर प्रेशर और एक टाइम के हिसाब से उसको हीटअप करेंगे। हीट जनरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। जो भी है हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर दे रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। द करंट इज द सेम इन द होल सर्किट। पूरे सर्किट में करंट कैसा है, सेम है। हीट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ resistance by the square of the current and by time, therefore the heat generation equation is H is equals to I square RT। जो भी लॉसेस है उस वजह से क्या होता है, हीट I स्क्वायर आर लॉसेस की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल यहाँ रखे वो क्या होगा, हीट अप होंगे। नेक्स्ट इज स्पॉट वेल्डिंग। अभी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है स्पॉट वेल्डिंग, जिसमें हमें दिखा है कि यहाँ पे भी हमने ट्रांसफॉर्मर अटैच किया है, प्रेशर दिया है, इलेक्ट्रोड्स है। जॉब मतलब ये जो वेल्डिंग है ये मटेरियल को हमें क्या करना है, वेल्ड करना है। अब इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ओवरलैपिंग शीट्स आर जॉइंड बाय लोकल फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, दो जॉइंट शीट्स का एट वन और मोर स्पॉट्स बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ करंट फ्लोइंग बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। बहुत रेयरली यूज करते हैं। टिपिकल रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज शोन इन फिगर। यहाँ पे आपको दिखाया है स्पॉट वेल्डिंग। Now what is spot welding? It is application in automobile and aircraft industries. The attachment of brackets, brackets or clips to form sheet metal parts such as cases, covers or trays. In another application of spot welding. Now next is sim welding. In sim welding आपको दिख रहा है यहाँ पे राउंडेड शेप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उसके बीच में क्या करते हैं हम, मेटल अटैच करके उसको वेल्ड करते हैं। Now it is continuous type of spot welding where in spots welds overlap each at other to the desired extent. In this process, coalescence at the flaying surface is produced by the heat obtained from the resistance to electric current to the work pieces held together under pressure by circular electrodes. सर्क्यूलर टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें हम क्या अटैच किए, जिसको वेल्ड करना है वो। The resulting weld is a series of overlapping resistance sports welds made progressively along a joint by rotating the circular electrodes. जो भी सर्क्यूलर इलेक्ट्रोड्स होंगे वो रोटेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से सप्लाई, जिनकी वजह से करंट पास होकर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। The principle of sim welding and resistance sim welding process set up in figure. The sim welding is similar to spot welding, except that the circular rolling electrodes are used to produce a continuous airtight seam of overlapping welds. दोनों कैसे सेम है, सिर्फ क्या होता है इसमें राउंड शेप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो ओवरलैप होते रहते हैं। ओवरलैपिंग कंटिन्यूस स्पॉट्स वेल्ड सीम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेटिंग इलेक्ट्रोड्स एंड रेगुलरली इंटरप्टेड करंट। जैसे ही रोटेट होंगे तो करंट भी क्या होगा, इंटरप्ट होते रहेगा, जिसकी वजह से हीटअप होगा और वो क्या होगा, पार्टिकल वेल्ड होगा। Now application of resistance sim welding.
It is used for making leak roof joints in fuel tanks of automobiles. Except for copper and high copper alloys, most other metals can be seam welded. It is also used for making flange welds for use in briquettes tanks. जो भी tanks में हमें उसका यूज करना है वहां पे भी seam welding होता है. Next is butt welding. अब butt welding क्या होता है? Welding of two pieces of metal together with a butt weld can be carried out by different resistance welding process. The butt weld consists of joining of two pieces of metal together either on face or on edge. जो भी मेटल हुक क्या होता है, एक तो हम रूफ में रखेंगे या फिर नीचे में रखकर उसको क्या करते हैं, हम प्रॉपर वेल्ड करते हैं. It is of two types, namely upset butt welding and flash butt welding. इसके भी दो टाइप है, upset butt welding and flash butt welding. Next is arc welding. arc से कैसे वेल्ड किया जाता है? Now what is arc welding? Arc welding is a welding process that is used to join metal to metal by using electricity to create enough heat to melt metal and the metals when the cool result in a binding of the metals. जो भी है, जो मेटल को हमें ये करना है वो किससे होता है? आर के वजह से हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं. इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड्स है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से क्या होगा, ये जो मेटल होगा वो वेल्ड होगा. अब इसके दो साइकिल सप्लाई हम इसमें यूज करते हैं, कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई और कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई. आर्क वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल लेंथ ऑफ द आर्क बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क and this can never be held completely constant in mutual welding. And next is constant voltage power supply. इसमें क्या होता है, at any voltage settling current may be vary from 0 to any extremely high short circuit current. Such a machine is designed specially for gas shielded metal arc welding and it is not generally suitable for स्ट्रिक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग. इसमें क्या होता है, करंट्स जो सप्लाई होता है वो वेराई होता है, बट वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है. नाउ सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर वेल्डिंग इज इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ होना चाहिए, नॉइज हजार्ड, एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन, एक्सपोज टू फर्नेस एंड गैसेस, फर्म्स एंड गैसेस, बर्न्स, वेयर पीपी एंड सनग्लासेस. थैंक यू.